Okay, let's keep solving. This is our question number. This will be question number 2, right? Okay. So let's try one more question based on completing the square method. ठीक है? F of x is equal to cos square x minus 4 cos x plus 13. Now this is actually a simple question. ये डायरेक्टली स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है cos केस में, राइट? नॉट दैट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई थिंक यू शुड ट्राई दिस एज होमवर्क. वो बेटर रहेगा, है ना? प्लीज ट्राई दिस एज होमवर्क. ट्राई दिस ऑन योर ओन, राइट? Okay, let's move on to next question. F of x is cos square x plus sin raised to 4x. Now this question is so very important. It's been asked like 100 times already. This question has been already asked like so many times. ठीक है? And remember, same question can also be f of x is sin square x plus cos raised to 4x. This could also have been question. इसका आंसर और इसका आंसर is going to be one and the same. ठीक है? Okay, let's look at the approach. Okay, कौन सा सॉल्व करें? Let's try the first one. Let's try this one. तो f of x is equal to, now what do you think we should do? इसमें देखो, एक इसमें cos स्क्वायर है, एक इसमें sin raised to 4x है. What do you think we should do? पहली बात, there has to be only one trigonometric function in the whole expression. So you either convert cos into sin or sin into cos. So tell me which would be more convenient, sin to cos or cos to sin? Which is more convenient? Isn't it? क्योंकि cos square x will directly give you 1 minus sin square x. अच्छा, अगर यहाँ होता, it would have been convenient to convert sin square into cos square. sin square की जगह 1 minus cos square x. ठीक है? अच्छा, तो हम इसको हायर ऑर्डर में लिखेंगे, नॉर्मल ऑर्डर में, sin raised to 4x प्लस cos square x की जगह रिमेंबर वी हैव रिटन 1 minus sin square x. तो ये minus sin square x प्लस 1, राइट? आपने नोटिस किया ये जो है ये बाई क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ साइन, राइट? सो यहां स्क्वायर कंप्लीट करेंगे बट इन अ डिफरेंट वे, है ना? लेट्स तो इसको हम लिखेंगे sin square x का होल स्क्वायर माइनस, सेम फंडा, हाउ डू वी कंप्लीट दिस स्क्वायर अगेन? इसका कोएफिशिएंट है -1 या 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका आधा 1/2 का स्क्वायर we have added as well as we have subtracted प्लस 1. ठीक है? तो ये होगा sin square x का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पार्ट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिंस देयर इज माइनस इन बिटवीन, तो ये होगा sin square x माइनस हाफ का होल स्क्वायर. अच्छा, ये -1/4 प्लस 1, तो ये प्लस 3/4. Okay, now we need to analyze this bracket. So from where do we start? What would be the first step? How do you analyze this expression here? Obviously स्क्वायर के अंदर जो है पहले उसको एनालाइज करिए, और इसके अंदर देखो sin square x है, तो we going to start with sin square x. We know that sin square x always lies between 0 to 1. ठीक है? now -1/2 है, तो -1/2 करेंगे हर जगह, less than or equal to 1 minus 1/2 is again 1/2. ठीक है? और इसका स्क्वायर, अब this is going to be interesting. sin square x minus 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसके बीच में लाई करेगा? रिमेंबर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, so minimum value is obviously maximum value 1/4. And then what do? We add 3/4. So 3/4 less than or equal to f of x है, is less than or equal to 1. तो f of x का रेंज है 3/4 to 1, right? A very very important question.
Now let's try next question. Now this is going to be a little bit difficult. This is our question number 4. F of x is 4 plus half sin square 2x minus 2 cos raised to 4x. Okay, we'll have to find the range of this function. तो अभी देखो यहाँ डिग्री 4 है और ये डबल एंगल है. सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? व्हाट इज द राइट अप्रोच टू दिस क्वेश्चन? नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन, नो डाउट. ये लेकिन मेंस में आया था रिसेंटली 2018 में शायद से. डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, साइन कॉस. अच्छा स्क्वायर रहेगा. अच्छा 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 ओके. तो स्क्वायर में रहेगा, फिर साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. हां व्हाई नॉट, वी कुड डू दैट. यस यस, दैट इज एन अप्रोच, है ना. ओके लेट्स डू दैट. 4 प्लस हाफ ऑफ साइन 2x की जगह 2 sin x cos x. लेकिन ये तो इसका स्क्वायर है, ये वैसे ही वैसे सोफा. तो f of x is 4 प्लस ये देखो 2 का स्क्वायर 4 by 2 is 2 और sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x into cos स्क्वायर x minus 2 cos raised to 4x. तो f of x is 4 plus 2 cos square x minus 2 cos raised to 4x minus 2 cos raised to 4x gives us 4 cos raised to 4x. ठीक है, ये है अपना एक्सप्रेशन. ठीक है. अच्छा अपने हिसाब से ये क्वाड्रेटिक है, मैंने ये लीडिंग टर्म है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ नेगेटिव है. तो एनीवे लेट्स रीअरेंज दिस. हाईएस्ट डिग्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो ये minus 4 cos raised to 4x plus 2 cos square x plus 4. ठीक है. अब स्क्वायर कंप्लीट करके वगैरह करना है अपने को. उसके लिए व्हाट आर वी गोना डू? वी गोना टेक, अच्छा मोरओवर इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो -4 है. तो व्हाट डू वी डू? व्हाट शुड वी टेक कॉमन? -4 ऑब्वियसली, ताकि उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाए. तो cos raised to 4x 2 upon -4 cos square x. और ये देखो 4 वैसे ही वैसे कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है. अब देखो अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया. ठीक है. नॉट इट शुडंट बी एन इशू नाउ, फॉर्मेलिटी है. इसको लिख दिया cos square x का होल स्क्वायर. देखो इसका कोएफिशिएंट हाफ का स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट हाफ, उसका आधा, हाफ का आधा 1/4 का स्क्वायर. we add as well as we subtract plus 4. तो f of x is -4 into, अच्छा यहाँ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है यहाँ, which is basically cos square x minus 1/4 का होल स्क्वायर. और ये देखो -1/4 सॉरी माइनस ऑफ 1/4 का स्क्वायर 1/16. ओह तो ये माइनस इन माइनस प्लस होगा पहले बार. और यहाँ 1/4 प्लस 4 17 सही है क्या? Is this what we get? Okay, now this is where we need to start analyzing this expression. First we want to start with cos square x. Cos square x always lie between 0 to 1. 0 to 1. So cos square x minus 1/4 lie between -1/4 to 3/4. अब इसका स्क्वायर, therefore cos square x minus 1/4 का होल स्क्वायर, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, माने बीच में
0 और यहाँ आएगा 9/16, राइट। और इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है बाय नेगेटिव साइन। ओके, remember when you multiply this by -4 what happens? Inequality चेंज हो जाएगी। हाँ, less than or equal to actually becomes, अच्छा एक मिनट, -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा कुछ होगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 से ये किया तो ये आएगा -9/4, सही है क्या? हाँ, अब इसको तो अच्छा, नाउ वी कुड ऐड 17/4 ऑन बोथ साइड्स। ये f of x है आपका, सही है, इक्वल टू -9 + 17/4 2 आएगा शायद से, इज इट? तो therefore f of x always lie between 2 and 17/4, तो इसका रेंज रहेगा 2 to 17/4। Now this was a nice question again, right? What did we do here? ये डबल एंगल और इसका स्क्वायर था, तो एक्सपेंड किया, फिर sin स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर, cos में बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, एंड देन वी ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर हियर बाय मेकिंग श्योर कि लीडिंग कोएफिशिएंट का कोई लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। Question number 5, is it? Okay. F of x is sin 3x upon sin x, where x is not equal to 10 pi. अच्छा, question number 6, I'd like you to try this as homework. Cos 2x plus cos x, ठीक है। ये जो है ये तो अपना कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हो जाएगा, सो ट्राई दिस एज होमवर्क। Question number 5. What do you do in question number 5? Pretty simple. Cos 3x, sorry, sin 3x का obviously फॉर्मूला लगेगा। What is that? 3 sin x minus 4 upon एक साइन कटेगा तो अल्टीमेटली आएगा 3 minus 4 sin square x। साइड से बाउंडेडनेस से हो जाएगा। sin square किसके बीच में लाया करता है हमेशा? sin square x लाइन बिटवीन। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ये इसलिए मेंस में आता है, सॉरी एडवांस में आता कि ये 0 ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। एग्जैक्टली, क्योंकि साइन 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एंड मोर ओवर क्वेश्चन में इट इज क्लियरली मेंशन कि x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, और साइन 0 कब होता है? n पाई पे, लेकिन x n पाई नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी नहीं रहेगा। दैट्स द ट्रिकी पार्ट इन दिस क्वेश्चन। -4 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट हैपेंस? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -4 sin square x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब 3 ऐड करना है दोनों तरफ से, greater than or equal to -1। So ultimately f of x जो है it is greater than or equal to -1 but less than 3. So -1 to 3 open. Okay, another question which I'd like to try to remember. F of x is log 3 sin x minus 4 cos x plus 15 upon 10, है ना? This you should be able to try. ये कौन सा फॉर्मेट में है? a sin x plus b cos x हो जाएगा। इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाला, फिर ऐड 15, फिर डिवाइड बाय 10, फिर अप्लाई टू द बेस 2। रिमेंबर log टू द बेस 2 इंक्रीजिंग है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस एज होमवर्क। फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन दिस, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालो, मिनिमम मैक्सिमम, फिर ऐड 50, divide by 10 and apply log 2 on both sides. Okay. Question number 7.
f of x is sin raised to 4x plus cos raised to 4x. नाउ एक और क्वेश्चन, इसमें से एक करेंगे हम sin raised to 6x plus cos raised to 6x. Very interesting. Now, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास. Don't we have standard result? Yes. So I'd like you to try question number 9 as well. इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है sin raised to 4x plus cos raised to 4x का. What was the standard result again? 2 sin square x cos square x. इसमें देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. नहीं चलेगा. उसके लिए क्या करना होगा अपने को? लेकिन साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन है, कुछ कर सकते हैं हम यहाँ. व्हाट कैन बी डन? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 डबल एंगल, इज इट? 1 माइनस ये देखो 2 sin x cos x इज sin स्क्वायर 2x, सही है. और नीचे में 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ. अच्छा, अब इसको एनालाइज करना है, हो जाएगा इजी. कैसे? अच्छा रिमेंबर ये डबल एंगल का कोई मतलब नहीं है. sin square 2x always lie between 0 to 1. अब हाफ से माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. फिर एडिंग 1 तो ये f of x हो जाएगा, इज इट? माने f of x always lie between 1/2 to 1. अच्छा ये देखो, बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आएगा क्वेश्चन. कैसे? लेट्स सी. नाउ हाउ वुड दे सेट दिस क्वेश्चन? अच्छा, सेम क्वेश्चन could happen if sin raised to 4x plus cos raised to 4x is p, then values of p for which the given equation has solutions. Same question could have been this. If sin raised to 4x plus cos raised to 4x is p, now what are all the values of p for which this equation has solution? So let's understand. इसका मतलब p का क्या वैल्यू होना चाहिए और what are all the possible values of p ताकि इस equation has solution. Remember when does an equation have solution? Equation solution का मतलब equality hold करना चाहिए. माने LHS should be equal to RHS, isn't it? अच्छा, तो हम LHS के बारे में कुछ बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं कि LHS जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है? 1/2 to 1. Now let's understand 1/2 to 1. अगर मान लो p का वैल्यू अगर 2 होता, p का वैल्यू 2 होता तो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि LHS तो ज्यादा से ज्यादा 1 और मिनिमम तो हाफ है. इसका मतलब p किसके बीच में लाई करना चाहिए so that it has solution? Exactly, it should lie between half to 1 for it to have a solution. As the same question could have been this. माने indirectly, अच्छा directly तो he is asking us to find the values of p, but indirectly what are we trying to find? We are trying to find range of trigonometric expression. ठीक है, a very very important type this again, right? तो ये आप कर लोगे ना sin raised to 6x और cos raised to 6x का. Now we are only left with 2 questions, right? Then you know range of trigonometric functions, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. They have been focusing on this type recently. Okay, this will be question number 11, is it? Question number 11 please. 10. Find minimum value of 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x. Now same question recently मेंस में आ चुका है.
Okay. Now, what is the approach? Completely different type. It's not related to the three standard types: boundedness, a sin x b cos x, फिर quadratic. वो स्टैंडर्ड मेथड तो नहीं है. थिंक ये स्ट्राइक होना जरूरी है. Yes. What's the logic? Any ideas? Sin x. Look at the big picture. अच्छा, आपको क्या पूछा गया है? और इस बीच में क्या साइन है? और ये कैसा क्वांटिटी है? हमेशा ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी, मिनिमम वैल्यू निकालना है. ऑब्वियसली हाँ, स्ट्राइक होना चाहिए. Remember, we are going to apply AMGM here. So we know that this upon 2 is always greater than or equal to root over, है ना? Arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. ठीक है. So ultimately 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x is greater than or equal to 2 times root over. अच्छा, we could do something here. ये क्या होगा? 2 का पावर sin प्लस. अच्छा, हम तो sin प्लस cos के बारे में जानते हैं. अभी हमने डिस्कस किया. ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया? sin प्लस cos का मतलब a sin x b cos x. इतना तो हम जानते हैं कि sin x प्लस cos x जो है ये हमेशा किसके बीच में लाई करता? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a1 है b1 है, यानी माइनस रूट 2 और रूट के बीच में. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये मिनिमम कब होगा? जब ये minimum होगा. as simple as that. So for this to be minimum, this also has to be minimum. और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस रूट 2. So obviously what we gonna do? So this is greater than equal to 2 raised to, अच्छा ये 2 का पावर जो कुछ भी रहेगा वो होल 1/2 रहेगा. सही है. अच्छा, sin x plus cos x की वैल्यू माइनस रूट 2 और ये 2 का पावर 1 है. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का पावर 1. ये तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. माइनस रूट 2/2. सही है क्या? a रेज़ टू n होल रेज़ टू n, a रेज़ टू n माइनस रूट 2/2 और ये 2 का पावर 1. अच्छा, ग्रेटर इक्वल टू 2 रेज़ टू 1 माइनस 1/. अच्छा, अगर वही 2 की जगह 8 होता तो भी कर सकते. नॉट एन इश्यू. व्हाट वुड इट बी? 2 की जगह 8 रहेगा. ठीक है. शायद से वो 8 वाला अपना 8 वाला जो क्वेश्चन है वो शायद से 2020 या 21 में आया था. इंस्टेड ऑफ 2 इट वाज 8. ओके, लास्ट क्वेश्चन. हो जाना चाहिए obviously, isn't it? Question is की find minimum value of f of x. Same question again, similar type. What do you do first? AMG again. So 27 raised to cos x plus 81 raised to sin x divided by 2 a plus b by 2 is greater than or equal to root over 27 raised to sin x cos x into 81 raised to sin x. But remember, हम blindly AMGM apply नहीं कर सकते. Remember, to apply AMGM, the two given numbers have to be positive. They have to be positive real numbers, and they are positive real numbers क्योंकि exponential function है, exponential terms. So therefore 27 raised to cos x plus 81 raised to sin x is greater than equal to 2 times root over. Okay, what do you do here? Now this is where things get interesting. Yes, exactly. Remember, उनको क्लब करने के लिए
उनका जो बेसिस है वो सेम होना चाहिए, एक 27 है एक 81 है। So obviously 27 can be written as 3q 3 cos x और 81 what about 81 3 raised to 4 माने वो होगा 4 sin x। देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया। और अब हम जानते हैं, अभी अभी कर चुके हैं राइट, है ना, ये मिनिमम के लिए ये मिनिमम, और ये मिनिमम कब होता है, जब ये -5 होता है, सही है क्या, when this is -5 राइट। -5 कैसे, a cos x b sin x वाला फंडा अप्लाई करेंगे, so therefore it is greater than equal to 2 times 3 का पावर -5/2 2 upon 3 का पावर 5/2 माने 2 upon 3 का पावर 5/2 का मतलब 2 + 1/2 है ना, ये होगा 3 का पावर 2 + 1/2 3 स्क्वायर 9 √ 3। सो इसका मिनिमम वैल्यू इज बेसिकली 2 upon 9 √ 3। ठीक है, सो यू नो with this we have finished range of trigonometric expression वाला फंडा, और बस सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट बाकी है अपना, एक है क्वाड्रेटिक बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक और दूसरा एक कंटिन्यूड सीरीज एक है, उस दिन हमने किया था कंटिन्यूड प्रोडक्ट और एक कंटिन्यूड सीरीज, ठीक है राइट।